Good noon, students. Good afternoon. चलो हम लोग लास्ट क्लास में हमारी वर्कबुक कर रहे थे ना? Yes, ma'am. Chapter 10. Chapter 10. Workbook practice sheet 3rd. तो इसमें हमारा फर्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. ठीक है, सॉरी, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है हमारा प्रैक्टिस शीट 3rd में. तो 3rd का फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द वर्ड इक्वेशन फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन. हमें क्या लिखना है? इसका वर्ड इक्वेशन लिखना है. तो आंसर इसका फर्स्ट का ए, ग्लूकोज ब्रैकेट में विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग. ग्लूकोज विद द यूज ऑफ. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. Glucose with the use of oxygen. Carbon dioxide plus water plus energy. ये है हमारा आंसर फर्स्ट. Write the word equation of aerobic respiration. उसके बाद में सेकंड है हमारा write the word equation for anaerobic respiration. Glucose ब्रैकेट में in the absence of oxygen slash lactic acid plus energy. ये है हमारा सेकेंड. हो गया? मैम फर्स्ट वाला हो गया. सेकेंड वाला करिए जल्दी से. चलिए, अब उसके बाद में हमारा थर्ड क्वेश्चन है हु आर एनारोब्स. तो इसमें लिखिए सी organisms that can survive in the absence of air. Organisms that can survive in the absence of air. उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ. राइट द पाथ ऑफ इनहेल्ड एयर फ्रॉम द नोज टू द लंग्स.
दो डी लिखिए, नोज, विंड पाइप, nose, windpipe, then lungs. Nose, windpipe, then lungs. हो गया कंप्लीट सबका? Yes, ma'am. सबको स्क्रीन विजिबल हो रही है बच्चों? Yes, ma'am. Yes, हाँ, चलिए। तो उसके बाद में अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू अर्थवॉर्म्स ब्रीथ? हाउ डू अर्थवॉर्म ब्रीथ? तो इसका आंसर लिखिए, देख सकते हैं, अर्थवॉर्म्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। Earthworms breathe through their skin. The skin feels moist and slimy on touch. Slimy on touching. Gases can easily pass through them. ठीक है, तो हमारा है earthworms breathe through their skin. The skin feels moist and slimy on touching. Gases can easily pass through them. हो गया? उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डज अ फ्रॉग ब्रीथ इन लैंड एंड ऑन इन वाटर एंड ऑन लैंड? हाउ डज अ फ्रॉग ब्रीथ इन वाटर एंड ऑन लैंड? उसका आंसर लिखिए, फ्रॉग्स ब्रीथ विद हेल्प ऑफ लंग्स ऑन लैंड एंड मॉइस्ट स्किन इन वाटर. Frogs breathe with help of lungs on land and moist skin in water. इतना सबका कंप्लीट हो गया? Yes, ma'am. देन हमारा नेक्स्ट है, हाउ डू रूट्स गेट ऑक्सीजन?
तो इसमें लिखिए roots take up oxygen from the air space present between the soil particles. Roots take up oxygen from the air space present between the soil particles. हो गया? Yes, ma'am. ठीक है लिख लो स्वीटी. टेंशन मत लीजिए, लिख लीजिए आराम से. मैम हो गया. हाँ, लिखिए आंसर. When we inhale air, the diaphragm moves downward to increase the space in the chest cavity as the lungs get filled with air. During exhalation, the diaphragm moves back to its original position and lungs become smaller as air goes out of them. ठीक है, लिख लिया सब लोगों ने आंसर फर्स्ट? नो मैम अभी नहीं हुआ. जल्दी करिए. अब उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा एक्सप्लेन हाउ अ कॉकरोच ब्रीथ. तो इसमें आंसर लिखिए. द कॉकरोचेस हैज spirals on the sides of its body. There are a network of tubes called trachea for exchange of gases. Oxygen rich air rushes through the spirals into the tracheal tubes, diffuses into the body tissues, and reaches every cell of the body. Similarly, carbon dioxide from the cell goes into the tracheal tubes and moves out through the spirals. ये है आपका आंसर सेकंड. कंप्लीट हो गया सबका? Yes, ma'am. Answer first and answer second both. Yes, ma'am. Okay. अब next आता है हमारा how can we get relief from muscular cramps. तो लिखिए आंसर इसका. We get relief from cramps after a hot water bath or a massage, as this improves circulation of blood, which increases supply of oxygen to the muscle cells. This results in complete breakdown of lactic acid.
हो गया? Yes, ma'am. जल्दी करो स्वीटी, इतना देर क्यों हो रहा है आपको लिखने में? हाँ, उसके बाद में नेक्स्ट है आपका हाउ डज द स्पेस इन द चेस्ट कैविटी इंक्रीजेस व्हेन वी इनहेल एयर। तो इसका आंसर है द स्पेस इन द चेस्ट कैविटी इंक्रीजेस व्हेन वी इनहेल एयर बिकॉज द diaphragm moves downward. Because the diaphragm moves downward. The space in the chest cavity increases when we inhale air because the diaphragm moves downward. अब उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन हाउ डू गिल्स हेल्प अ फिश इन ब्रीथिंग। तो इसका आंसर लिखिए फिश breathe with help of gills that are well supplied with blood vessels for exchange of gases. हो गया सबका? Yes, ma'am. स्वीटी हुआ? Yes, ma'am. Okay. Last question is what will happen if a potted plant is overwatered? तो इसका आंसर है when a potted plant is overwatered, the air space get filled with water and the roots do not get air to breathe. फिर ब्रीथ के आगे लिखिए दिस ऑफ्टेन। ब्रीथ के आगे लिखो लिख लिया ना ब्रीथ तक। फिर ब्रीथ के आगे से उसी आंसर में कंटिन्यू करो जो हमारा आंसर था एफ वाला जो आंसर था उसी में कंटिन्यू करो। ब्रीथ के बाद से दिस ऑफ्टेन makes the plants die. ब्रीथ के बाद से लिखना है दिस ऑफ्टेन मेक्स द प्लांट डाई। हो गया सबका? Yes, ma'am. आप कोई भी एक ऐसा आंसर जो किसी का छूटा हो ना हो पाया हो बताइए। हो गया ना सबका सारे आंसर्स? Yes, ma'am. मैम जो इसके पहले आपने फर्स्ट वाला बताया था वो नहीं हुआ था मैम, ज्वाइन नहीं हुआ था क्लास।
फर्स्ट वाला कोई बात नहीं स्वीटी, ऑनलाइन वीडियो पड़ी होगी, वहां पे आप जाके देख के कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो आप किसी से भी मांग लीजिएगा, आस्था से या जानब से, वो आपको आंसर दे देंगे, ठीक है। यस एंड बच्चों सबको पता है ना कि 4 तारीख से हम लोग के 4 फरवरी से ओरल एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। यस मैम। ठीक है, तो अपना ओरल एग्जाम का सब लोग को प्रिपरेशन करना है, और किस टाइम पे होगा ये भी पता है सबको। यस मैम। ठीक, तो जिस टाइम पे क्लास होगी उसी टाइम पे सबका ओरल एग्जाम होगा। मैम तीनों क्लास होगी। हाँ बेटा, आपको मिल जाएगा ना, जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन आपको मिल जाएगा डेट शीट। नहीं तो आपको पहले ही एक दिन पहले बता दिया जाएगा, तो अपना रेडी कर लीजिएगा, ओके। यस यस मैम। अब एक चीज और, आप लोगों को इसके लिए फाइल बनानी है, चार्ट या मॉडल में से कोई एक चीज बनाना है, ठीक है। मैम क्या बनाना है? फाइल आपको बनानी है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स पे, ठीक है। यस मैम। और फाइल मेनली 5 या 6 पेजेस की बनाइएगा बस, ठीक है। ओके, यस मैम। फाइल बनानी है रेस्पिरेशन इन, म्यूट कर दीजिए, क्लास चल रही है। फाइल आपको बनानी है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स पे, ठीक है। तो 5 पेजेस होने चाहिए, 5 के बाद आपके 10 पेजेस या फिर 10 तक आपका हो जाए, ठीक है। मिनिमम 5 पेज होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में फिर बचता है आपका चार्ट या फिर मॉडल। अब चार्ट में आप लोग सॉइल प्रोफाइल के बारे में बता लीजिएगा, ठीक है। यस मैम। पेपर में सब लोगों से पूछा गया था लेयर्स ऑफ सॉइल के बारे में बताना है, और सब लोगों ने आंसर्स किसके दिए, सॉइल प्रोफाइल के दिए थे। हाँ, लेयर ऑफ सॉइल में और सॉइल प्रोफाइल में अंतर होता है बच्चों, ठीक है। तो चार्ट में आपको क्या बनाना है, सॉइल प्रोफाइल के बारे में बताना है, और साइड में क्या करना है, उसमें जितने भी हॉरिजॉन्स हैं वो सबको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। यस मैम। और पूरा एक बड़ा चार्ट मत कीजिएगा, चार्ट का बस 1/4 पार्ट लीजिएगा, उसमें ड्रॉ करिएगा, ठीक है। यस मैम। यस मैम। और उसके बाद में बचता है आपका मॉडल। तो या तो आपको चार्ट बनाना है या तो आपको मॉडल बनाना है, दोनों में से सिर्फ और सिर्फ एक चीज बनानी है, चार्ट और मॉडल, ठीक है। अब जो मॉडल बचता है आपका, उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बताना है, ठीक है। जो मॉडल है आपका वो आपको बनाना है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में।
बच्चों माइक म्यूट कर दीजिए आप लोग। बच्चों माइक म्यूट कर दीजिए, स्पेशली आस्था। रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ड्रिप इरिगेशन, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग या फिर ड्रिप इरिगेशन, इन दोनों में से कोई एक चीज पर मॉडल बनाना है। जैसे अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप चार्ट बना रहे हो, ठीक है, तो आप मॉडल नहीं बनाओ, ठीक है। अगर चार्ट बना रहे हो तो मॉडल नहीं बनाओगे, और अगर मॉडल बना रहे हो तो चार्ट नहीं बनाओगे, ठीक है। तो चार्ट या मॉडल दोनों में से सिर्फ एक चीज बनानी है, और मॉडल में आपके दो ऑप्शन हैं, या तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग या फिर ड्रिप इरिगेशन, इन दोनों में से कोई एक का मॉडल बनाना है, ठीक है। किसी को आप कुछ डाउट? नो मैम। ठीक है, अब सबको समझ में आ गया ना। फाइल बनानी है किस पे? रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स पे। मिनिमम 5 पेज होना चाहिए, मैक्सिमम आपका 9 से 10 पेज तक हो जाना चाहिए, ठीक है। चार्ट या मॉडल में से कोई एक चीज बनाएंगे। अगर चार्ट बनाएंगे तो सॉइल प्रोफाइल के बारे में बनाएंगे, और अगर मॉडल बनाएंगे तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग या फिर ड्रिप इरिगेशन के बारे में बनाएंगे, ठीक है। अब जो क्वेश्चंस पुट अप होंगे, जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो जो चैप्टर्स आपके यूनिट 2 में आ चुके हैं उनसे, और जितना चैप्टर अभी आप लोग पढ़ चुके हैं उससे पूछा जाएगा, ठीक है। तो सब लोग चैप्टर्स को अच्छे से रीड करना है, एक्सरसाइज लर्न नहीं करना है, चैप्टर अच्छे से रीड करना है, क्योंकि जो क्वेश्चंस पुट अप होंगे वो चैप्टर के अंदर से पुट अप होंगे, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, thank you students. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.